Well, it's disheartening. On one side, the government of India and the Prime Minister himself wanted one nation, one election. 4 states, they are holding state elections as well as parliamentary elections. Why is this state being denied? And every party, whether it's BJP, whether it's other parties, everybody wanted elections. What is the reason? If they say the security is the reason, I don't think so. They're shouting from the top of the mountains that security is fine here. Then how is it that security is all right for parliamentary election and not for the state elections? As you also said, they are shouting for the mountain tops. PM also said that Jammu Kashmir is the Parivar of PM. There you are. Then when he came here, I think Election Commission should rethink on it. Rethink. And they should rethink, give state the power of holding their election. So that the state can have their own government, not lieutenant governor, own government. And the state should be restored rapidly. Sorry. Do you think this is not the disappointment for the political leaders, parties, or also for the people? It is for the people. Assembly member is responsible for the people. The government officer is not so much responsible. He doesn't have to fight election again. Now, I have one apprehension here. According to the Supreme Court, they announced that the elections of the Jammu Kashmir will be held on 30th of September. But after this election, which will be concluded on the counting 4th June, Amarnath Yatra will be also start. Can we say this is the delay tactics? Maybe they will say that in September it's not also possible because the Yatra is now security issue. Anything can be possible. Knowing what they did today, they may not hold election for years. Even in September. Keep us under their foot. So what about September? Do you think they will hold? I don't know. I have no idea. God only knows. Being a member of parliament, how much you are confident now coming these elections? Inshallah, people will vote for National Conference. We stand for them. We'll keep on standing for them. We'll fight for their rights till breath is in our body. One and last, I forgot one thing. In the Election Commission of India says it is the local administration feedback. They said that the possibility of election is not possible. Because the local officers want to stand in command. They don't want to lose their pleasures, which the government will do. They'll make them work. And they will feel what government is. Today there are masters. Their mastery will fall the day election is announced here. मैं स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के निर्णय का स्वागत करती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के 140 करोड़ परिवारवासी और 96 करोड़ परिवारवासी जो वोटर हैं, वो भारत के सुदृढ़ करने के लिए वोट करने के लिए निकलेंगे। भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और दुनिया के अंदर मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, जिसके पास 96 करोड़ मतदाता हैं। दुनिया का सबसे सम्मानित, जिम्मेदार, विश्वसनीय चुनाव आयोग और चुनाव सिस्टम है। हमें अपने सिस्टम पर पूरा विश्वास है और मैं देश के 96 करोड़ वोटरों को निवेदन करूंगा और अपील करूंगा कि जो विकसित भारत का सपना लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए आप घरों से निकलें और भारी से भारी मतदान करके देश के अंदर एक मजबूत, डिसाइसिव, डायनेमिक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार। शशि थरूर का कहना है कि इस बार की जो इलेक्शन वो डिसाइड करेंगे कि देशवासियों को कैसा हिंदुस्तान चाहिए, कैसा भारत चाहिए। तो आपका क्या कहना है उसमें? बिल्कुल निश्चित रूप से एक तरफ वंशवादियों की वेला है, वो विश्व वेला लोकतंत्र को लगातार खा रही है। दुनिया के अंदर हम बहुत बड़ी एग्जाम्पल हैं वोटर स्ट्रेंथ के मामले में।
हम बहुत बड़ी एग्जाम्पल हैं निष्पक्ष चुनाव कराने में। हम बहुत बड़ी एग्जाम्पल हैं आत्मनिर्भर रूप से हर क्षेत्र में आगे बढ़ने में। इसलिए जो वंशवादियों की वेला है, ये विश्व वेला लोकतंत्र को खोखला कर रही है। और इस समय वंशवादियों की वेला ने भ्रष्टाचार और अपने घोटालों से बचने के लिए जो यूपीए एनडीए गठबंधन बना रखा है, वो INDI गठबंधन असफल होगा। सचमुच देश की जनता परिवारवादियों को नहीं, उस नेता को चुनेगी जो सारे देश को एक परिवार मानता है। उमर अब्दुल्ला की बात करें, फारूक अब्दुल्ला की बात करें, कांग्रेस की बात करें, वो कहती है एक तरफ बीजेपी स्लोगन देती है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, और दूसरी ओर असेंबली चुनाव नहीं कर पा रही। अगर यहाँ पे हालात सुधरे हैं तो क्यों असेंबली चुनाव लोकसभा के साथ? मैं छोटे मियाँ जी को कहूंगा, इस चुनाव को लड़िए, वो भी आने वाला है। और इससे पहले डीडीसी इलेक्शन में भी आपने पंचायत इलेक्शन का आपने बायकॉट किया, बीडीसी इलेक्शन का बायकॉट किया, और डीडीसी इलेक्शन में जनता ने आपका बायकॉट किया, क्योंकि अभी तक आप 370 और 35A के मुंगेरी लाल के सपने से बाहर नहीं आए हैं। अब वो टूट चुका है। अब देश आगे बढ़ गया है, जम्मू कश्मीर आगे बढ़ चुका है। अब 370 और 35A की जंजीरों में मुक्ति मिल चुकी है। क्या 400 का आंकड़ा पार होगा अब की बार? देश के अंदर एक अलग तरह का वातावरण है। देश की जनता जो प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना परिवार मानती है, वो तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों के लिए काम करने वाली, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, उनके सपनों को पूरा करने वाली सरकार बनाएंगे। और निश्चित रूप से ये तीसरी बार की पारी भारत को विश्व की तीसरी आर्थिक महाशक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनाने में सफल हो। एक आखिरी सवाल, क्या कमल खिल सकता है इस बार कश्मीर में? वैसे तो कश्मीर में हर जगह कमल खिलता ही है, और कमल की सब्जी, वहां पोम्पोश की सब्जी सभी लोग खाते ही हैं, मशहूर है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज एक ही आवाज है कि डायनेमिक, डिसाइसिव, गरीबों के लिए काम करने वाले नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने। तीसरी बार वो देश की सेवा के लिए प्रस्तुत होकर देश को आगे बढ़ाएं। इसलिए देश की जनता खुलकर उनको आशीर्वाद दे रही। मैं चुनाव आयोग के निर्णय का, आज की घोषणा का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। और निश्चित रूप से दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, वर्ल्ड के अंदर जब लोग लोकतंत्र को जानते भी नहीं थे, तब भारत के अंदर जनप्रतिनिधि के माध्यम से शासन होता आया है। इसलिए भारत दुनिया का सबसे मैच्योर लोकतंत्र है। वो अपना भाग्य बनाने वाले नेता को चुने। 5 में से कितनी सीट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? देश के अंदर अब की बार 400 पार होके रहेगा, और 370 तोड़ने वालों को 370 सीटें मिलेंगी। क्या कश्मीर में चुप साहब कोई प्री पोल अलायंस बीजेपी कर सकती है? क्योंकि अटकलें लगाए जा रहे हैं कि बारामूला से बीजेपी प्री पोल अलायंस कर सकती है। जम्मू कश्मीर की जनता 3 परिवारों को नकार रही है, जिन्होंने गुपकार गठबंधन बनाकर पंचायत, बीडीसी इलेक्शन का बायकॉट किया, और डीडीसी चुनाव में जनता ने उनका बायकॉट किया। आने वाला समय भी जनता अब उनकी नेगेटिव नैरेटिव पर नहीं जाएगी। जनता ने मन बना लिया है, इन 3 परिवारों से मुक्ति चाहिए।